مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو آج کل ہر طرف گونج رہا ہے، لیکن آخر یہ ہے کیا چیز؟ آئیے اس تجزیے میں ہم اس پیچیدہ ٹیکنالوجی کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کو کیسے بدل رہی ہے۔ چلیں ایک بہت ہی عام سی مثال سے بات شروع کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنا فون کھولنے کے لیے فیس آئی ڈی کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر جب نیٹ فلکس پر کوئی فلم یا شو دیکھنے لگتے ہیں تو وہ ایسی چیزیں تجویز کرتا ہے جو لگتا ہے کہ بالکل ہمارے لیے ہی بنی ہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی بھی کام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مصنوعی ذہانت ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پردے کے پیچھے یہ سب چلتا کیسے ہے؟ آئیے ذرا اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ آخر یہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی ہے کیا؟ دیکھیں، آسان لفظوں میں کہیں تو مصنوعی ذہانت کا مطلب ہے مشینوں کو انسانوں کی طرح سوچنے، سیکھنے اور مسئلے حل کرنے کے قابل بنانا۔ مطلب یہ ایک طرح سے انسانی ذہانت کی ہی ایک ڈیجیٹل کاپی ہے۔ اس کی کچھ بنیادی صلاحیتوں میں شامل ہے ڈیٹا میں چھپے پیٹرنز کو پہچاننا، جیسے اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا، ہماری بولی جانے والی زبان کو سمجھنا جیسا کہ سری یا گوگل اسسٹنٹ کرتے ہیں، اور ہاں، تصویروں کا تجزیہ کرنا جیسے کوئی ٹریفک کیمرہ گاڑی کی نمبر پلیٹ پڑھ لیتا ہے۔ آج کل کی زیادہ تر اے آئی کی طاقت کا اصل راز اس کا انجن ہے، اور اس انجن کو کہتے ہیں مشین لرننگ۔ اصل جادو یہیں ہوتا ہے۔ اچھا، مشین لرننگ کا کمال یہ ہے کہ اس میں کمپیوٹرز کو ہر کام کے لیے ہدایات نہیں دی جاتی، بلکہ وہ خود ڈیٹا سے سیکھتے ہیں۔ یہ پرانی پروگرامنگ سے بالکل الٹ ہے، جہاں ہر اصول انسان کو لکھنا پڑتا تھا۔ مشین لرننگ کا یہ عمل عام طور پر 2 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلا ہے ٹریننگ۔ یہاں ماڈل کو بہت سارا پرانا ڈیٹا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بینک ہزاروں پرانی قرض کی درخواستیں استعمال کرتا ہے تاکہ ماڈل یہ سیکھ سکے کہ کون سی درخواستیں کامیاب ہوئیں اور کون سی ناکام۔ دوسرا مرحلہ ہے انفرنس۔ اب ٹریننگ کے بعد ماڈل اپنی اسی سمجھ کو استعمال کر کے نئی درخواستوں پر فیصلہ کرتا ہے کہ قرض دینا چاہیے یا نہیں۔ اس کی پہلی قسم ہے سپروائزڈ لرننگ۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ماڈل کو ایک جوابی کلید یعنی آنسر کی کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے۔ اسے ہزاروں ای میلز دکھائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سی سپیم ہے اور کون سی نہیں۔ اس طرح وہ خود ہی سپیم کی نشانیاں سیکھ جاتا ہے۔ پھر آتی ہے ان سپروائزڈ لرننگ۔ یہاں ماڈل کو بغیر لیبل والا ڈیٹا دے کر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسے خود ہی اس میں چھپے ہوئے پیٹرنز اور گروپس تلاش کرنے ہوتے ہیں، جیسے ہزاروں خبروں کو ان کے موضوعات مثلا کھیل، سیاست یا ٹیکنالوجی کے حساب سے خود بخود الگ الگ کر دینا۔ اور تیسری قسم ہے ری انفورسمنٹ لرننگ۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی پالتو جانور کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ صحیح کام پر انعام، غلطی پر نہیں۔ بالکل اسی طرح ایک اے آئی ماڈل شطرنج کھیلنا سیکھتا ہے، اور یہی چیز اسے انقلابی بناتی ہے، کیونکہ یہاں اے آئی کو کسی انسانی مثال کی ضرورت نہیں۔ وہ خود تجربے کر کر کے پیچیدہ کام سیکھ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی گیم ہو یا روبوٹکس۔ اب مشین لرننگ سے ایک قدم اور گہرائی میں چلتے ہیں، اس کے سب سے طاقتور حصے کی طرف، جسے ڈیپ لرننگ کہتے ہیں، اور اسے اے آئی کا دماغ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تو ڈیپ لرننگ کی بنیاد ہیں نیورل نیٹ ورکس۔ یہ ایسے کمپیوٹر ماڈل ہیں جو ہمارے انسانی دماغ کے نیورونز کے جال سے متاثر ہو کر بنائے گئے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت پیچیدہ ڈیٹا جیسے تصویریں، ویڈیوز اور آوازیں سمجھنے میں ماہر ہیں، وہ چیزیں جہاں عام مشین لرننگ کو مشکل ہوتی ہیں۔ اس کی ٹریننگ کا طریقہ بڑا دلچسپ ہے۔ پہلے فارورڈ پروپیگیشن میں نیٹ ورک ایک اندازہ لگاتا ہے، پھر بیکورڈ پروپیگیشن میں وہ اپنے اندازے کو اصل جواب سے ملاتا ہے اور اپنی غلطی سے سیکھ کر خود کو تھوڑا بہتر کرتا ہے، اور جب یہ عمل لاکھوں بار دہرایا جاتا ہے تو وہ ناقابل یقین حد تک درست ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اے آئی کے سب سے حیرت انگیز اور جدید ترین حصے پر، جس نے آج کل ٹیکنالوجی کی دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے: جنریٹو اے آئی۔ دیکھیں، جنریٹو اے آئی صرف ڈیٹا کو سمجھتی یا اس کی درجہ بندی نہیں کرتی، یہ کچھ بالکل نیا تخلیق کرتی ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو ایک نیا مضمون لکھ سکتی ہے، حیران کن تصویریں بنا سکتی ہے، میوزک ترتیب دے سکتی ہے، اور یہاں تک کہ کمپیوٹر کوڈ بھی لکھ سکتی ہے۔ یہ صرف پیشگوئی سے آگے بڑھ کر تخلیق کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ اب ان ٹولز کو استعمال بھی کر رہے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی سے متن لکھواتے ہیں، مڈ جرنی سے تصوراتی تصویریں بنواتے ہیں، گٹ ہب کو پائلٹ کوڈنگ میں مدد کرتا ہے، اور اب تو سورا جیسی ٹیکنالوجی صرف ہدایت دینے پر پوری کی پوری ویڈیوز بنا رہی ہے۔ تو ہم نے اے آئی کی گہرائیوں کا سفر کیا، اور اب واپس بڑی تصویر کی طرف آتے ہیں۔ چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے تصورات مل کر اے آئی کو ہمارے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کے لیے حواس کیسے دیتے ہیں۔
ये सारी टेक्नोलॉजीज दो बड़े शोबों को ताकत देती हैं। पहला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसकी वजह से एआई हमारी ज़बान बोल, लिख और समझ सकती है, और दूसरा है कंप्यूटर विजन, जो इसे हमारी तरह देखने की सलाहियत देता है, यानी तस्वीरों और वीडियोस को समझने की। तो इस पूरे सफ़र का खुलासा ये है कि मस्नूई ज़हानत ने हमारी ज़बान और हमारी बसरी दुनिया दोनों को समझना सीख लिया है। लेकिन अब कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो एक कदम आगे बढ़ गई है। अब वो सिर्फ दुनिया को समझ नहीं रही, बल्कि इसी दुनिया के अंदर नई चीजें तख्लीक करना यानी बनाना भी सीख रही है। और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो बात यह है कि एआई ने पहले हमारी दुनिया को समझा और अब वो इसमें नई चीजें बना रही है। ये हमें इस दौर के सबसे बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ये आगे क्या तख्लीक करेगी। अच्छा, तो जो सारे आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और आपके नोट्स थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, वो मैं सब देख रही थी। और इन सब को पढ़कर ना एक बुनियादी सवाल जहन में आता है कि ये जो इतनी सारी अलग अलग इस्तिलाहात हैं, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, फिर डीप लर्निंग, एलएलएम्स, ये सब आखिर आपस में जुड़ी कैसे हुई हैं? मतलब ये इतना बड़ा मौजू है कि इन सब में फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और जो मवाद आपने भेजा था उसमें भी यही बात है कि लोग ये अल्फाज इस्तेमाल तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनका आपस में ताल्लुक क्या है ये अक्सर वाज़ेह नहीं होता। सही। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक साफ तस्वीर बनाएं। हम बिल्कुल शुरू से देखेंगे कि एआई का आइडिया क्या है और फिर वहां से हम आज की जनरेटिव एआई तक कैसे पहुंचे। चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज? हम रोज उसे इस्तेमाल करते हैं, फोन का फेस आईडी हो या नेटफ्लिक्स की फिल्मी तजवीज, लेकिन इसकी असल तारीफ क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसकी तारीफ भी ना वक्त के साथ बदलती रही है। लेकिन जो सबसे बुनियादी ख्याल है, जो सारे ज़राए में मुश्तरक था, जी, वो ये है कि एआई कंप्यूटर साइंस की वो शाख है जो ऐसी मशीनें बनाने की कोशिश करती है जो वो काम कर सकें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी ज़हानत लगती है। इंसानी ज़हानत। अच्छा, जैसे किसी तरतीब या पैटर्न को पहचानना? बिल्कुल। पैटर्न पहचानना इसकी सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी मिसाल है। जैसे मैं कहूँ 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो अगला 10 होगा। फौरन आपने पैटर्न पकड़ लिया। एआई यही काम मशीनों से करवाता है, लेकिन बहुत ही बड़े पैमाने पर। इसके अलावा जबान को समझना, जैसे सिरी और अलेक्सा, अच्छा, या तस्वीरों का तज्जिया करना, जैसे ट्रैफिक कैमरे नंबर प्लेट पढ़ लेते हैं, ये सब एआई की ही मिसालें हैं। आपके नोट्स में खाका था, वो मुझे यहाँ बहुत मददगार लगा जी कि एआई एक बहुत बड़ा दायरा है। जी, वो दायरों वाला। हाँ, और उसके अंदर एक छोटा दायरा मशीन लर्निंग का, फिर उसके अंदर डीप लर्निंग और बिल्कुल बीच में जेनरेटिव एआई। इससे ताल्लुक बहुत आसानी से समझ आता है। जी हाँ, वो खाका बिल्कुल सही तस्वीर दिखाता है। और देखें, आजकल हम जिस भी चीज को एआई कह रहे हैं ना, उसका 99% हिस्सा दरअसल मशीन लर्निंग ही है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो एक आर्टिकल में भी थी, कि हर एआई मशीन लर्निंग नहीं होती। कुछ पुराने सिस्टम्स भी हैं जो डेटा से सीखते नहीं हैं। है? अच्छा, जैसे सोचे एक फैक्ट्री में एक रोबोटिक बाजू है जो सिर्फ एक डब्बा यहां से उठाकर वहां रखता है। बस ठीक है, वो एआई तो है क्योंकि वो इंसानी काम कर रहा है, लेकिन वो कुछ सीख नहीं रहा। वो सिर्फ अपने प्रोग्राम किए गए उसूलों पर चल रहा है। अच्छा। इसी तरह हमारे एसी में फजी लॉजिक होती है, वो भी एक पुरानी एआई है जो डेटा से नहीं सीखती। तो मशीन लर्निंग एआई का वो हिस्सा है जो सीखने पर जोर देता है। ठीक है, तो ये सीखना ही असल फर्क है, और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आपके मवाद में वो बैंक लोन ऑफिसर वाली मिसाल थी जी जी, कि अगर आपको फैसला करना हो कि किसको कर्ज देना है और किसको नहीं, तो आप माजी का डेटा देखेंगे। बिल्कुल, और यही मशीन लर्निंग की बुनियाद है। इसी अमल को हम ट्रेनिंग कहते हैं। हम एक एल्गोरिथम को हजारों लाखों पुराने कर्जों का डेटा देते हैं। अच्छा, उस डेटा में सब कुछ होता है, उम्र, तनख्वाह, क्रेडिट स्कोर और आखिर में नतीजा, कर्ज वापस हुआ या नहीं। एल्गोरिदम उस सारे डेटा से पैटर्न सीखता है। तो वो ये सीखता है कि अच्छी तनख्वाह और अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले लोग कर्ज वापस कर देते हैं। हाँ, मगर उससे कहीं ज्यादा पेचीदा पैटर्न्स भी।
हो सकता है वो ये सीखे कि एक खास पेशे और उम्र के लोग ज्यादा काबिल एतबार हैं। इन सब पैटर्न से मिलकर एक मॉडल बनता है। ठीक है, ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। जी, और फिर जब कोई नया शख्स कर्ज के लिए अप्लाई करता है तो ये मॉडल उसकी मालूमात को अपने सीखे हुए उसूलों पर परखता है और एक पेशीनगोई करता है। इसी को इन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक? बिल्कुल ठीक। जराए बताते हैं कि जीमेल का स्पैम फिल्टर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल दुरुस्त। ये 2 कदमी अमल है, माजी से ट्रेनिंग और नए डेटा पर पेशीनगोई। वो जो फूड डिलीवरी एप्स वक्त बताती हैं ना कि ऑर्डर 30 मिनट में आएगा, वो भी यही कर रही हैं। वो पिछली लाखों डिलीवरीज के डेटा से सीखती हैं कि इस वक्त इस इलाके में इस मौसम में कितना वक्त लगता है। जबरदस्त। अच्छा, तो अगर सीखना ही बुनियाद है तो क्या सीखने के तरीके भी अलग अलग हैं? क्योंकि जराए में जिक्र था जैसे एक उस्ताद की तरह सिखाना और एक खुद तजर्बा करने देना। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। मशीन लर्निंग के बुनियादी तौर पर 3 बड़े तरीके हैं। पहला और सबसे आम है सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी ज़ेरे निगरानी सीखना। अच्छा, ये तो नाम से ही लग रहा है जैसे कोई उस्ताद सिखा रहा हो। बिल्कुल। आप मशीन को मिसालों के साथ साथ सही जवाब भी देते हैं, यानी लेबल शुदा डेटा। स्पैम फिल्टर की तरह कि ये ईमेल स्पैम है और ये वाली नहीं है। एग्जैक्टली। आप उसे हजारों ईमेल्स देते हैं जिन पर पहले से स्पैम या स्पैम नहीं का लेबल लगा होता है और मॉडल इससे सीखता है। ठीक है। और एक आर्टिकल में बहुत अहम बात लिखी थी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में असल मुश्किल मॉडल बनाना नहीं, बल्कि ये साफ सुथरा लेबल शुदा डेटा इकट्ठा करना है। इसी में 80% मेहनत लगती है। और यहीं पर गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को फायदा होता होगा जिनके पास इतना डेटा है। बिल्कुल। अच्छा, इसी सुपरवाइज्ड लर्निंग में 2 तरह के मसाइल हल होते हैं। एक है क्लासिफिकेशन, यानी चीजों को ग्रुपों में बांटना, जैसे स्पैम या स्पैम नहीं। जी, या ये बताना कि मेडिकल इमेज में ट्यूमर है या नहीं। और दूसरा है रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी किसी नंबर की पेशेंटगोई करना, जैसे घर की कीमत या डिलीवरी का वक्त। बिल्कुल। अगर जवाब एक कैटेगरी है तो क्लासिफिकेशन, अगर एक नंबर है तो रिग्रेशन। समझ गई। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहां कोई उस्ताद नहीं, कोई लेबल नहीं। आप मशीन को सिर्फ बहुत सारा डेटा देते हैं और कहते हैं कि इसमें खुद से कोई दिलचस्प ग्रोह या साख्त तलाश करो। ये तो थोड़ा मुबहम लग रहा है। इसकी क्या मिसाल होगी? इसकी बेहतरीन मिसाल है कस्टमर सेगमेंटेशन। एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के पास लाखों ग्राहकों का डेटा है। वो ये सारा डेटा एक अनसुपरवाइज्ड मॉडल को देते हैं और वो खुद ही ग्रो बना देता है। जैसे बजट खरीदार, ब्रांड के वफादार, सिर्फ सेल में खरीदारी करने वाले। ओह वाह, यानी कंपनी ने उसे ये कैटेगरीज नहीं बताई? बिल्कुल नहीं। मॉडल ने खुद उनके खरीदारी के पैटर्न से ये ग्रो ढूंढ निकाले। न्यूज़ वेबसाइट्स भी इसी तरह हजारों आर्टिकल्स को खेल, सियासत जैसे मौजुआत में बांटती हैं। और तीसरी किस्म रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये तो मुझे किसी पालतू जानवर को ट्रेन करने जैसी लगी, जैसा आपके नोट्स में भी लिखा था। हाँ, ये बिल्कुल वैसी है। यहाँ एक एजेंट यानी हमारा मॉडल होता है जो एक माहौल में काम करता है। अच्छा। वो मुख्तलिफ काम करता है और उसे अपने हर अमल पर या तो इनाम मिलता है या सजा। उसका मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा इनाम इकट्ठा करना। अच्छा। इसकी सबसे अच्छी मिसाल एक एआई की थी जिसे पुरानी वीडियो गेम्स खेलना सिखाया गया। उसे सिर्फ स्क्रीन के पिक्सल्स और स्कोर दिखाया गया, कोई उसूल नहीं बताए। और उसने खुद ही सीख लिया? कुछ ही घंटों में वो इंसानों से बेहतर खेलने लगा, सिर्फ ज्यादा स्कोर हासिल करने की कोशिश में। ये शतरंज और खुद चलने वाली गाड़ियों में बहुत इस्तेमाल होता है। जबरदस्त। तो ये तीनों तरीके मुख्तलिफ मसाइल के लिए हैं। लेकिन जब बात आती है वाकई पेचीदा गैर मुनज़्ज़म डेटा की, जैसे तस्वीर, वीडियोस या इंसानी आवाज़, तो वहाँ क्या होता है? मुझे लगता है यहीं पर डीप लर्निंग का किरदार आता है। बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं आप। रिवायती मशीन लर्निंग ना मुनज़्ज़म डेटा पर